बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज ये सेकंड पार्ट है आपके लेक्चर का। That central nervous system has two components, brain and spinal cord. They are protected in various ways. As you can see over here, स्किन की कवरिंग नजर आ रही होगी आपको, bones, obviously cranium around the brain, and spines of vertebral column around the spinal cord. But there are three layers of meninges which are protecting the components of central nervous system as well. यहाँ पे ब्रेन के कंपोनेंट्स को या ब्रेन को enlarge करके शो किया गया है. Just look at the diagram please. कि ब्रेन का एक थोड़ा सा पोर्शन स्कल में से उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शोन है. The outermost layer of the meninges is called dura mater. Dura mater is a tough fibrous membrane that is protective in nature. The middle layer, dura mater, the term dura has been taken from durable, that it is tough and fibrous. Dura word durable से लिया गया. Second layer of meninges is called arachnoid, and arachnoid word has been taken from arachnida, delicate. It's actually delicate that connects the innermost layer, pia mater. Pia mater contains blood vessel. As you can see over here, there are certain blood vessels which are appearing in this layer. Pia mater contains small blood vessels that nourish the spinal cord. So overall, protection of meninges is given to the brain as well as spinal cord via three layers: dura mater, arachnoid, and pia mater. As I said, that there are other ways which protect the brain and spinal cord as well. A bony protection around brain is called skull, while the bony protection around spinal cord, they are the spines of vertebral column. Third way of protection as well as nourishment of central nervous system is presence of cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid वो भी प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हुए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ब्रेन. और ये ब्रेन की एक सिंप्लीफाइड सी डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है जिसको यहाँ पे शो किया गया है. इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर ले क्योंकि इसी के कंपोनेंट्स बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Conventionally, you have studied that brain is composed of three parts: hindbrain, forebrain, and midbrain. इसमें से लार्जेस्ट पार्ट हमारे पास फोरब्रेन है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन. बाकी एनिमल्स में भी साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं. हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन हैज बीन रिड्यूस्ड इन ह्यूमन. द अदर ways of division of brain, they're shown in this diagram. That forebrain is further divided into telencephalon and diencephalon. Telencephalon is made up of cerebral, olfactory bulb concerned with olfaction mean smell, limbic system, and corpus striatum. We will discuss these components one by one. Diencephalon consists of thalamus, hypothalamus, and pituitary gland, as well as the smallest gland of our body, that is pineal gland. Midbrain is known as mesencephalon. Mesencephalon has a main component which is also known as optic tectum, an important part of the brainstem. And the hindbrain is named as rhombencephalon as well. It consists of pons and cerebellum, as well as an important component which leads to the spinal cord as well, medulla oblongata. The next components which we are going to discuss one by one, it includes hindbrain. Hindbrain is continuous with the spinal cord and includes the medulla oblongata, cerebellum, and pons, as we have observed in the previous diagram. And first of all, we're going to discuss about medulla. Just look at this diagram.
brains of different animals have been shown over here. The first brain which you are observing in this diagram is the brain of a frog, an amphibian. The second brain shown here is a reptilian model, alligator. Alligator brain ये reptilian model के तौर पे show किया गया. The next one is the brain of a bird, and the last one is the brain of a mammal. Mammalian model is a cat, and avian model is a chicken. You can observe the changes or evolutionary trends in medulla oblongata. It has been actually reducing in size from a frog to the mammals or cat with respect to their body size. बाकी ब्रेन के पोर्शन की निस्बत मेडुला का पार्ट या मेडुला का जो साइज है वो आपको थोड़ा रिड्यूस नजर आ रहा होगा, लेकिन सभी के अंदर ये तकरीबन फंक्शन सेम सर्व कर रहा है, और यही वो पोर्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ लिंक कर रहा होगा. इट कंटेन्स रिफ्लेक्स सेंटर्स for all animals with respect to these functions which I am underlining over here. breathing center होता है यहाँ पे. swallowing का जो involuntary part है वो control कर रहा होगा. cardiovascular functions related to the heartbeat as well as gastric secretions, they are under control of medulla oblongata. Jarred vertebrates, जालस फिशेस के अलावा बाकी सारे वर्टिब्रेट्स जार्ड वर्टिब्रेट्स में आते हैं. उनके अंदर ये बता रहे हैं कि हाइंड ब्रेन वेल डेवलप्ड है. दैट वाज अबाउट hind brain first part, medulla oblongata. We will see about the other parts as well. Like hind brain consists of cerebellum as well. Now focus on the cerebellum as well. Cerebellum ही कौन सा part है? Cerebellum has been colored पर्पल ओवर हियर. ये पर्पल कलर आपको नजर आ रहा होगा इन्हीं डायग्राम्स में. फ्रॉम फ्रॉग टू द कैट, frog, alligator, chicken and cat. Just look at this. What changes do you observe over here in the size of cerebellum? ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ऑब्वियसली एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इन 4 डायग्राम्स के अंदर, द cerebellum is increasing in its size and is an outgrowth of the medulla. It coordinates motor activities associated with limb movement. और limb memory जो हमारी बैलेंसिंग है, posture maintaining है, हमारी ओरिएंटेशन, कैसे बैठे हैं हम, मूवमेंट करते हो, अपना बैलेंस क्या रखना है, ये सारा कंट्रोल होता है सेरिबेलम के पास. सेरिबेलम, लार्जेस्ट सेरिबेलम आपको किस में नजर आ रहा है? मोस्ट डेवलप. यहाँ पे हमारे पास मोस्ट डेवलप सेरिबेलम की बात की जाती है. The cerebellum in cartilaginous fishes has distinct interior and posterior lobes. In bony fishes, Cereos, the cerebellum is large. In active swimmers, you will see a trend over here कि वो animals जिनके अंदर movement ज़्यादा efficient है, उनके अंदर cerebellum की development भी ज़्यादा है, because cerebellum is concerned with regulation of body movements. Amphibians have a rudimentary cerebellum, reflecting their relatively simple locomotory patterns. They show simple locomotion. That's why their cerebellum is simple over here. It doesn't mean they're not moving. They're motile animals, but their movement patterns are quite simple as far as their muscles are observed. अगर उनके muscles को देखें, muscle movement को focus करें, तो उनकी muscle movement बहुत simple as compared to other groups shown here. Tetrapods की बात की गई है. All those animals which are having 4 limbs, from frog to mammalian groups, amphibians to mammalian groups, they are named as tetrapods. वो कह रहे कि cerebellum इनके अंदर laterally expand कर गया. These expanded lateral lobes provide locomotory control of muscles of their appendages. And cerebellum is much larger in birds as well as in mammals. It reflects their complex locomotory patterns. Cerebellum has been quite wonderful in migratory birds. वो birds जो migratory birds होते हैं, उनके अंदर cerebellum की development बाकी तमाम birds से भी बेहतर होगी.
The third portion of the spine, hindbrain is pons. As you can observe here in this diagram, that pons, it indicates a bridge or a highlighted section, blue in this diagram. Blue section जो इस diagram का बेटे ये pons है. It is showing pons, the third component of the hindbrain. Pons is a transverse nerve thread from the cerebrum of the forebrain onto both sides of the cerebellum. ये cerebellum के दोनों साइड पे actually नजर आ रहा होता है. It contains tracts that forebrain and spinal cord, forebrain और spinal cord को जो connecting fibers हैं वो भी इसके अंदर मौजूद होते हैं. Pons control different functions of the body, like it control transition state between sleep as well as wakefulness. Pons, it controls changes in breathing style, breathing pattern. Breathing जो सेंटर है वैसे मेडुला के अंदर भी है, लेकिन जो ब्रीदिंग पैटर्न या ब्रीदिंग रेट में डिफरेंसेस आने हैं वो भी पॉन्स कंट्रोल कर रहा होता है. These are the functions, certain functions which are controlled by pons. The next one is midbrain. बेटा ये सारे कंपोनेंट, ये जो सारी राइटिंग्स मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, ये आपकी मिलर हार्ले की बुक से ही है. मैं दोबारा से बताता चलूं, आप बुक साथ खोल लिया करें और उससे आपको ये चीजें मिलती रहेंगी. हाँ, कुछ डायग्राम्स मैंने एडिशनली ऐड की होती हैं जो वहां पे मुझे नहीं मिलती और मुझे लगता है कि आपको देखनी चाहिए, वो मैं डायग्राम इसमें जरूर ऐड करता हूँ. बाकी कंटेंट सारे के सारे मैं आपकी बुक से यहाँ पे ले रहा होता हूँ, और ये बुक के कंटेंट्स हैं, बुक की लाइंस हैं, इनको जरूर वहां पे देखिए. ब्रेन के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, और प्रीवियस पेपर्स में अगर आप देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी डिस्कस हुआ है. इसके कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस. एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में उसको पूछा जा सकता है. मिड ब्रेन जिसको हमने कहा मेसेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन और टेलेनसेफ्लॉन हमने फोर ब्रेन के लिए टर्म्स यूज की, और रोम्बेनसेफ्लॉन की टर्म हमने यूज की हाइंड ब्रेन के लिए. लेट डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इस डायग्राम में ग्रीन कलर का शो हो रहा है. ब्लू कलर का पोर्शन, जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, ब्लू कलर पोर्शन पॉन्स था, हाइंड ब्रेन का पार्ट. मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, इनको मिला के वैसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. मिड ब्रेन, pons as well as medulla, they are collectively known as brain stem as well. Midbrain is reduced part in the brain of the human, and it was originally a center for coordinating reflex responses to the visual input. शुरू में इस midbrain ने visual relay center का काम किया. Visual relay center mean screening of information from the eyes. विजुअल इनपुट की स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? इफ यू लुकिंग एट दिस स्लाइड, अगर आप ये स्लाइड देख रहे हैं एंड आई एम सेइंग कि ये जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन दिया है, ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है बेटे, व्हाट इज दिस? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली रिस्पॉन्सेस टू विजुअल इनपुट लिखा हुआ है. जब आप ये सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं या विजुअल का वी देख रहे होते हैं, इट डजंट मीन कि बाकी वर्ड्स आपकी आंखों के सामने नहीं, but they have been screened out when you're focusing at this sentence or part of the sentence. जब आप इस स्पेसिफिक लाइन पे देख रहे हैं तो बाकी चीजों को मिड ब्रेन ने फिल्टर कर दिया. इसी तरह आवाजों में से किसी एक आवाज को पहचानना या उस पर फोकस करना, ये काम भी मिड ब्रेन के पास होता है. As the brain evolved, it took on added functions relating to tactile and auditory hearing input, but it didn't change in size. इसका साइज कुछ ज्यादा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में मॉडिफाई नहीं हुआ. द रूफ ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड ऑप्टिक टेक्टम. मिड ब्रेन रूफ इज कॉल्ड ऑप्टिक टेक्टम. आई एम हाईलाइटिंग दिस पोर्शन. ऑप्टिक टेक्टम इज अ थिकन्ड रीजन ऑफ द ग्रे मैटर दैट इंटीग्रेट्स विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी सिग्नल. मिड ब्रेन में वैसे हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल हो रहे होते हैं. ज्यादातर रिफ्लेक्सेस कहाँ कंट्रोल होते हैं? Obviously in the spinal cord, but midbrain is also concerned with control of certain cranial reflexes. मसलन आप खुश होते हैं तो facial expressions, या फिर eyes की जो blinking है ये भी एक reflex है. वो reflexes जो brain के करीब है उनको भी midbrain control कर रहा होता है. And the most important function of the midbrain to act as a screening center for visual
as well as auditory signals. Well, the next portion of the brain which we have to discuss is forebrain. ये वही डायग्राम है जो प्रीवियसली आप शुरू में भी देख रहे थे. जस्ट a revision के forebrain is further divided into two main components, telencephalon and diencephalon. And components of telencephalon, they include cerebral, olfactory bulb. Olfactory bulb is concerned with olfaction or smell. Limbic system, corpus luteum, then diencephalon, thalamus, hypothalamus, pituitary gland, and pineal gland. Forebrain has two main components as we have discussed over here. The diencephalon just lies in front of midbrain. Diencephalon is the next part to the midbrain. Midbrain से ऊपर diencephalon मौजूद होगा. जैसे ये midbrain है तो ये diencephalon का पोर्शन है. और उससे भी जो नेक्स्ट पार्ट है जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है हमारे ब्रेन में, स्पेशली वन कंपोनेंट ऑफ द telencephalon, cerebrum. Cerebrum is the most developed portion in the mammalian brain, and that's the actual part due to which mammalian brain is considered as a developed brain as compared to other brains of the vertebrate phyla. Thalamus, which is considered sometimes as a part of limbic system as well, but over here it is a component in this classification component of diencephalon. Thalamus relays all sensory information to the higher brain center from lower brain center through midbrain. Midbrain के अगला पार्ट ही thalamus है, इस वजह से thalamus इसके साथ connected और higher brain center तक information को communicate करेगा. Hypothalamus, मैं जस्ट इसको डायग्राम में भी आगे मजीद शो कर देता हूँ कि एक्चुअल डायग्राम में कैसे नजर आ रहा होता है. Hypothalamus just below the thalamus, it's considered as coordination center. अगर एक वर्ड में आप इसको याद रखना चाहें, that hypothalamus, इसका फंक्शन क्या होता है? तो hypothalamus is concerned with coordination, controlling of coordination functions of the body. For example, thermostat है, यहाँ पे temperature center है, thirst center है. इसके अलावा बेटे sexual drive, carbohydrate metabolism, hunger and thirst, they are controlled by hypothalamus. एक ग्लैंड होता है पाइनियल ग्लैंड, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहां पे पाइनियल ग्लैंड का भी जिक्र आ जाएगा. पाइनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. पाइनियल ग्लैंड एंड द स्मॉलेस्ट ग्लैंड एज वेल. पाइन शेप होता है, कोन शेप होता है, इस वजह से इसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं. इट कंट्रोल बायोलॉजिकल रिदम्स. बॉडी के जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं उनका कंट्रोल पाइनियल ग्लैंड के पास होता है. नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फोरब्रेन. फोरब्रेन में डिस्कस किया गया कि फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये आपने प्रीवियस डायग्राम में भी ऑब्जर्व किया, आप उसको बुक से भी दोबारा से देख सकते हैं. वो जो ब्रेन के कंपैरिजन की डायग्राम है बेटा वो आपकी बुक से ही ली गई थी. इन फिशेस एंड एम्फीबियंस द diencephalon प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन. diencephalon में भी हमने देखा कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड. तो इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस की मेन बात हो रही होगी. The most important part of the brain is corpus luteum, which plays a role in their complex behavioral patterns. ये भी diencephalon slowly expanded during evolution and handled more and more sensory functions. That's why it is acting as a coordinating center of the body. While the telencephalon, the front part of the forebrain, it expanded rapidly in the size as well as complexity. जैसा कि बेटा मैंने अर्ज किया कि हमारे पास सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है cerebrum. External to the corpus luteum is the cerebrum, which is large, which a large group divides into right and left cerebral hemisphere. हमारे ब्रेन के cerebrum के दो पार्ट्स पढ़े हुए आपने, left cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere, which control the opposite part of the body. The parts of brain related to sensory and motor integration. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास हमारे ब्रेन का, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन सेरिब्रम में कंट्रोल हो रही होती है. मेनी फंक्शंस ऑफ द ऑप्टिक टेक्टम. ऑप्टिक टेक्टम आपने पढ़ा अभी भी, मिड ब्रेन का पार्ट टू द एक्सपेंडिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, वहां पर शिफ्ट हो गए. अब हमारे पास सेरिब्रम के बहुत से फंक्शंस हैं. ऑडिशन, विजन, टच के इनपुट को, स्पीच को,
इंटेलिजेंस को, बिहेवियर को, ज्यादातर फंक्शन सेरिब्रम ही कंट्रोल कर रहा होता है. The increasing importance of cerebrum has affected many other brain regions, especially the thalamus as well as cerebellum. मैमल्स के अंदर जो ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट है उसे हम नाम दे रहे होते हैं सेरिब्रम, कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है. इसके साइज को अगर आप देखें तो ये डायग्राम बेसिकली डिपिक्शन है सेरिब्रम के इंक्रीजिंग साइज की ही. Bass is a fish, frog, pit viper is a reptilian model, snake की diagram है. ये bird है आपके पास और बाकी mammalian models हैं different दिए हुए. ह्यूमन तक जाते जाते अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा फोल्डेड पोर्शन, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट है ये है सेरिब्रम. द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोरब्रेन एज वेल एज टेलेनसेफ्लॉन. सबसे ज्यादा डेवलप पोर्शन है सेरिब्रम. इसमें आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, फर्दर ये जो कन्वर्जन्स नजर आ रही हैं. What does it indicate? ये किस चीज को शो कर रहा है कि फोल्डिंग्स क्यों है? एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सेरिब्रम का साइज तो इंक्रीज कर गया, लेकिन स्कल का साइज शायद उतना इंक्रीज नहीं किया जितना कि सेरिब्रम ने इवॉल्व किया या सेरिब्रम इंक्रीज किया साइज में. दैट्स व्हाई सेरिब्रम के अंदर फोल्डिंग्स डेवलप होगी. इट मींस कि सेरिब्रम ने आउटपेस कर दिया है. सेरिब्रम का रेट ऑफ एवोल्यूशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन साइज हायर है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एज कंपेयर्ड टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द स्कल. That's why there are enfoldings in the cerebrum, and evolutionists say that it is still increasing in the size. ये एनिमल्स के या वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट ग्रुप्स में सेरिब्रम का इंक्रीजिंग साइज शो किया गया. सेरिब्रम कंट्रोल क्या करता है? जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत से बॉडी फंक्शंस. इसके दो पार्ट्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट पार्ट राइट साइड को कंट्रोल करता है एंड वाइस वर्सा. और सेरिब्रम के अंदर ये जो इनफोल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इसका इंक्रीज सरफेस एरिया, ये इसके फंक्शंस को भी शो कर रहा होता है कि इसके साथ डिफरेंट कॉर्टेक्स हैं, लाइक विजुअल कॉर्टेक्स जो विजन से रिलेटेड है, विजन को इंटरप्रेट कर रहा है, ऑडिशन, स्पीच, टच. इसके साथ साथ बेटा इंटेलिजेंस के फंक्शंस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, बहुत से फंक्शंस जो है वो हमारे पास फोर ब्रेन के इस पार्ट यानी सेरिब्रम में कंट्रोल हो रहे होते हैं. Well, all those nerves which are projecting out from the brain directly, they're named as cranial nerves. इनको हम cranial nerves कहते हैं. और cranial nerves हमारे पास reptile, birds and mammals के अंदर 12 pairs होते हैं, fishes के अंदर just इसके 10 pairs हैं. Some of the nerves, nerve कहते हैं किसे? एक rod like structure, एक cluster जिसके अंदर हमारे पास आप यूं कह लें कि डिफरेंट न्यूरॉन्स इकट्ठे हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. सम ऑफ द नर्व्स सच एज ऑप्टिक नर्व कंटेन, इसमें नर्व्स की डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा. व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजन कि रीजनल टाइप्स क्या हैं, तो रीजनल टाइप्स दो हैं नर्व्स की. नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स outside brain and spinal cord. If these nerves are projecting out from the brain, they are named as cranial nerves. If they are projecting out from the spinal cord, they are named as spinal nerves. But they're also classified on the basis of their functions. For example, sensory nerves, जिनमें सिर्फ sensory neurons होंगे. Motor nerves, जिनमें सिर्फ motor neurons होंगे. And third one, mixed nerves. Mixed nerves contain motor as well as sensory neurons. ये हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स दिए हुए हैं. आपने इनको मेमोराइज भी करना और देखना भी है. ये आप फ्लो चार्ट मैंने आपकी बुक से लिया है. एक वाइवा के तौर पे कल मैं कोशिश करूंगा बेटा आप लोगों से ये पूछूं. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबियोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एक्सेसरी and hypoglossal nerves. All these nerves are cranial nerves.
उनकी नेचर भी गिवन है आपके सामने इस चार्ट में नजर आ रही है, आप इसको बुक से देखेंगे भी, टाइम अभी शॉर्ट है, बाकी इंशाल्लाह हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बुक से आप इस फ्लो चार्ट को याद भी करेंगे और इसकी जो है वो नेचर को भी ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट, ये कंपोनेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट फ्लो चार्ट में भी, जस्ट एक रिवीजन थी कि आपको देख सके कि आप जो है किस लेवल तक पहुंचे हैं। अभी आप डिस्कस कर रहे हैं बेटा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स को, जिसमें क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ ली। अभी नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें इनवॉलेंटरी फंक्शंस कंट्रोल हो रहे होते हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। Parasympathetic nervous system is mainly concerned with functions of rest and relax. रेस्ट के जो फंक्शंस है उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, जबकि इमरजेंसी के जो फंक्शंस हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, उसको कंट्रोल कर रहा होगा बेटे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक आपके पास डायग्राम नजर आ रही होगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम it controls emergency functions, for example dilation of the pupil, ताकि ज्यादा नजर आए और प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप के दौरान रनिंग में आसानी हो, ज्यादा विजन अच्छे से हो। आप एक चीज इंपॉर्टेंट जो नोट कीजिएगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स की प्रोजेक्शन कहाँ से। इट्स द स्पाइनल कॉर्ड शोन इन दिस डायग्राम। स्पाइनल कॉर्ड में जो मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जबकि टॉप एंड बॉटम पोर्शन ये पैरासिम्पैथेटिक के लिए है। फिर जो गैंग्लियन की लोकेशन है वो भी सिंपैथेटिक में जरा करीब है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में थोड़ा दूर जाके ये गैंग्लियंस डेवलप हो रहे हैं। स्लाइवा को जो है वो स्लाइवा की प्रोडक्शन को रोकना, ब्रोंकाई को रिलैक्स करना ताकि ज्यादा रेस्पिरेशन हो, हार्ट बीट को एक्सेलरेट करना, पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करना, और ये सारे वो फंक्शंस आप नोट करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हवाले से जो एनर्जी लेवल को बूस्ट करें विद रिस्पेक्ट टू द मसल मूवमेंट। बेटा टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं इसको क्विकली वाइंड अप कर रहा हूँ। और जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रिलैक्स से रिलेटेड फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा।